हैं, सब कुछ इजी है, सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं. So few years back somebody gave me this thing. अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि अगर ये सही है ना तो तुम्हारे ज्योमेट्री के सारे जो अभी तक फंडे थे वो चेंज होने वाले हैं. So this is a random triangle I've made. Triangle ABC is a random triangle. I'm not saying it is equilateral, na? And then two constructions. First is a perpendicular bisector. So this line is a perpendicular bisector, obviously passing through the midpoint and perpendicular to the base. Tell me, what is the property of a perpendicular bisector? Obviously it bisects the side. Obviously it is perpendicular to the side. Other than this, if you choose any point on this side and join these two by equidistant रहेगा. Yes. If you choose any point on a perpendicular bisector, it will remain equidistant from the two points joining them. You got this line segment. So obviously these two triangles are congruent because this side is same as this side. This angle is 90. This is a common side. So these two triangles are congruent. So no matter where you choose a point on this perpendicular bisector, PA will be always equal to PB. And similarly, if I draw an angle bisector, अगर हमने एक angle bisector draw किया, what is the property of an angle bisector? What is the property of an angle bisector? That if you choose any point on the angle bisector, say, if you choose any point on the angle bisector and draw perpendiculars on these two lines, the length of perpendicular will remain same. See, ये दोनों equal रहेंगे. Reason एक बार फिर, because these two angles are equal. These two angles are equal. This is 90 degrees and there is a common side. So we can use ASA. And these two triangles are congruent. So this side is the same as this side. So once more, what is the property of perpendicular bisector? You choose any point, it will remain equidistant from the 2 points. What is the property of angle bisector? You choose any point on the angle bisector and it will remain equidistant from the 2 sides. Now in this diagram, there is an angle bisector. This is an angle bisector and this is a perpendicular bisector. This. And suppose they are intersecting at point P. They are intersecting at point P. Now, this point P, because this point P is a common point of intersection of perpendicular bisector and angle bisector. So this point must follow both properties. What properties? If you join P to C and P to B, obviously this side should be equal to this side. होना चाहिए ना भाई? Reason? The point P lies on perpendicular bisector. So you can easily prove that PMC and PMB are congruent. Similarly, if I drop a perpendicular here, है ना? So, wait. Call this Q, call this R. So PQ is also equal to PR. Why PQ equals to PR? Because P is lying on this angle bisector as well. So that means ये तो already midpoint था ही, इसको mention की जरूरत नहीं, but this is same as this. Now tell me if anybody has any doubt in this diagram, this construction, all the things I have said. PQ equals to PR and PB equals to PC. Anybody? Yes? You raised your hand. I could not see your name. You have any doubts? No, sir. Okay, assuming you have no doubts. All right, so now tell me, first of all, can you show that these two triangles are congruent? Or do you see it? It is very apparent, it is very obvious that these two triangles are congruent. कैसे? See? RHS. Yes. RHS. RHS. PR equals to PQ and PB equals to PC. And it's a right angle triangle, so due to RHS,
triangle PRB is congruent to triangle PQC. Fine. So this gives you what? This gives you that other two sides are also equal. That means RB is same as QC. Tell me if I'm wrong. RB equals to QC is correct? Yes, sir. RB is the third side of this right angle triangle. QC is the third side of this right angle triangle. Yes, sir. And Yes, sir. Okay, okay. So there's something, very strange which is coming to you. So fasten your seat belts, because in the very next step I'm going to write AR equals to AQ. AR equals to AQ. Tell me if it is also correct. Why AR Yes, should be sir. equal to AQ? Right. ARP Sir, and AQP are congruent. Sir, angle Isn't it? RAP is equal to angle QAP, P, correct. and angle ARP is equal to angle AQP, which is also 90. and Yes. AP is the common side. Yes. So AP is a common side. PR equal to PQ. There are lots of things which are same. Angles are same. Sides are same. So these two triangles are obviously congruent. And if these two triangles are congruent, I can directly say that AR equals to AQ. Like, अगर सर किसी उसकी को- जरूरत ही नहीं है सर. हाँ हाँ. किसकी जरूरत नहीं सर है? उसकी जरूरत ही नहीं है ना सर. सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के क्योंकि AB is हाँ, equal to बिल्कुल, AC है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना. हाँ हाँ. तो अपने आप इक्विलैटरल नहीं है भाई. मैंने कब कहा इक्विलैटरल है? I didn't say it is equilateral. आपने बोला सर. नहीं. मैंने स्टार्ट इससे किया कि if every मतलब ये हमारा ड्रीम होता है कि भाई दुनिया का सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल होते तो कितना अच्छा होता. तो मैं तुम्हें कहीं वहां पहुंचा रहा हूँ. देखो in again from start, triangle ABC is a random triangle. It is not equilateral. I didn't mention, and I never used that this is equilateral. For side BC, there is a perpendicular bisector, and for angle A, this is an angle bisector. Tell me where did I use this as an equilateral triangle? कहीं पर 60 degrees, कहीं पर sides equal है. मैंने कहीं कुछ mention नहीं किया है ना? ठीक है. Okay. तो हमको AR equals to AQ के लिए इन दोनों triangles को congruent show करना पड़ेगा. But अब मुझे बताओ कि अगर तुम इन दोनों equations को subtract कर दो, like AR minus RB, AR minus RB, and here you'll get AQ minus QC. Subtracting these two. AB is equal to AC. AB is equal to AB equal to AC. AB is AB equal equal to AC. और देखो तुम्हारा बचपन का ड्रीम आज मैंने सच कर दिया. Now you must be happy about it क्योंकि AR minus RB is AB and AQ minus QC equals to AC. So from I think कुछ लोगों को अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या हो गया. हमने हमारा assumption था this is a random triangle, right? I never said it is equilateral. I never said it is isosceles. So whatever I'm doing, it is true for every random triangle that I can always construct an angle bisector. I can always construct a perpendicular bisector. और यहाँ से perpendiculars drop किए हमने इनको join किया and there are few triangles congruent और उसकी help से हमने इन दोनों sides को equal show किया, इन दोनों sides को equal show किया. Just by subtraction, now came a result which says that AB equals to AC. तो बताए इसका क्या मतलब हुआ? कि no matter what triangle you choose, कोई भी triangle हो, scalene हो, right angle कुछ भी हो, it is an isosceles triangle. And what if I repeat? मैंने B से अगर angle bisector draw किया होता, perpendicular bisector, similarly I could have proved that BC equals to AC. ये similarly prove किया जा सकता है, right? भाई अगर तुम इस triangle को पूरा rotate कर दो and follow the same procedure, तो हम फिर से उसी result पे पहुंच जाएंगे. तो not just एग्जाम में कर सकते हैं ये. मतलब तुमने ट्रस्ट कर लिया मेरी बात को that every triangle AB is not equal to AC. I know AB is not equal to AB should not be. मैंने जब triangle बनाया था, it could have been a scalene triangle, it could have been any triangle, but I have just proved that AB equals to AC, BC equals to AC. So every triangle is PQ AC पे भी लाई कर सकते हैं ना. हाँ PQ क्या हो गया?
सर PQ AC पे भी लाइज कर सकते हैं ना? PQ AC पे लाई कर सकता है मतलब स्टेटमेंट का मतलब सुनिए, PQ तो एक मतलब वो C पॉइंट के ऊपर भी लाई कर सकता है ना? अच्छा Q या P, अच्छा Q की बात कर रहे हो तुम? Q, हाँ Q। Q कोइंसाइड कर सकता है, वो कब कर सकता है, ऐसा कब हो सकता है? जब AC लंबा होगा। AC लंबा होगा। अच्छा P को P सर जब पीबी और तो देखो ये बराबर ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ दिस इज बुलशिट, ये थोड़ी ना होता है यार, एवरी ट्रायंगल इज इक्वल अंटिल अगर ऐसा हो गया तो खत्म हो गई ज्योमेट्री, अब तक हम कर क्या रहे थे? सो योर टास्क इज टू फाइंड द मिस्टेक, द प्रूफ इज फॉल्टी। अच्छा हम बस बोल देंगे और मान लेंगे, ऐसा ना होता है, यू हैव टू प्रूव दैट माय प्रूफ इज रॉन्ग। सर एक डाउट है, हाँ बोल ना। AR इक्वल टू AQ नहीं समझा क्यों? AR इक्वल्स टू AQ कैसे होगा? फिर से देखो, AR इक्वल्स टू AQ since triangle ARP is congruent to triangle AQP. ARP is congruent to triangle AQP. See, it's ARP and AQP are congruent. ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद वी विल लिव इन आवर मिथिकल वर्ल्ड कि भाई एवरी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, कोई दुनिया में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, दुनिया में बहुत खुशहाली है, आराम से रहेंगे आगे। और दूसरा ये है कि we'll try to explore this problem and see, we'll try to find a mistake in this proof because it cannot be correct. Sir, Every triangle cannot be equilateral, है ना? Sir, I'm leaving it up to you. PQ and PC should be coinciding. What? sir, What points should be coinciding? PQ and PC. PQ and PC must be coinciding. क्यों भाई ऐसा क्यों? What is the reason? ऐसा क्यों ना चाहिए? मतलब तो you are trying to say कि अगर इन दोनों का जो point of intersection होगा, this angle PCA will be always 90. Why PCA should be always 90? Can you prove it? Because this is just an angle bisector, this is perpendicular bisector, and you are saying that this PCA angle must be 90. क्या reason नहीं हो क्या है? सकता सर। क्योंकि अगर ये 90 हो गया ना तो फिर से कोई स्पेशल ट्रायंगल बन जाएगा। It is not necessary, it is नहीं। तो Q and C are not coinciding. There is something else. Sir, for What's- congruency, Yes. we cannot prove by like angle QAP and AQP should be lying on a same line, same side for the proof. Like I'm saying that we have proved from PAQ and AQP, and we have taken AP for proving the congruency, but we should take AQ and AR should be congruent. I mean same Yes. for proving For congruency. congruence, especially in a right triangle case, because in both cases we have a right angle triangle, right? So if two of the sides are equal, third side is automatically equal. We are not bothered about angles here, right? So if you look at triangle PRB and PQC again, in PRB and PQC, clearly this side is equal to this side because this point is lying on the angle bisector, and PB equals to PC because this point is also lying on the perpendicular bisector. If two sides are equal, we are not bothered about any angle of third side, right? Because of Pythagoras, it is SSS. So these two triangles are obviously congruent. And similarly, we can say for PRA and PQ, as we were mentioning, that PR equals to PQ. It's already given. And PA is a common side. So two of the sides are common. Two of the sides are exactly equal in two right angle triangle. So third side is going to be equal, obviously. है ना? तो सर congruence. पिछले साल वो पीडल लाइन थ्योरम पढ़ा था, इज इट दैट? क्योंकि वो तीनों ऑल्टीट्यूड आई मीन परपेंडिकुलर शुड बी ऑन अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ सिंगल Which perpendicular? the perpendiculars drawn from a point to the sides of the triangle should be collinear. Simpson's line पे लाई होने चाहिए। Simpson's line is something different. ना? Simpson's line जो तुमने पढ़ी होगी, it was for a triangle ABC there will be a circumcircle. If you choose
any point on the circumcircle and drop 3 perpendiculars on 3 sides, the feet of the perpendiculars will be collinear. It is something different. We are not having a fourth point here, right? P. सर हाँ. सर अगर ये P- इक्विलैटरल तो हाँ, फिर अगर ये ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड एग्जैक्टली वही तो बात है यार. अगर ये इक्विलैटरल होता तो ये कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं. तभी तो मैंने एक डायग्राम ऐसा बनाया विच इज apparently looking like a scalene triangle, जहां पर ये एंगल 60 नहीं दिख रहे हैं हमको, साइड्स इक्वल नहीं दिख रही. बट इस प्रूफ में क्या प्रॉब्लम है जो उसको इक्विलैटरल प्रूफ कर रहा है? सर अगर ये इक्विलैटरल होता तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स कोइंसाइड कर जाती हैं. एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोइंसाइड कर जाते हैं. AA0001 BC equals to AC. BC equals to AC. सर ये अज्यूम कर रहा है हाँ सर ये अज्यूम कर रहा है कि पॉइंट क्यू सी के बाद आता है, पॉइंट क्यू सी के पहले भी आ सकता है ना? वही, क्योंकि सर अगर हम लोग सर एंगल बाइसेक्टर लेना, पॉइंट क्यू सी के पहले आ सकता नहीं है, पॉइंट क्यू सी के पहले आएगा. ठीक है. और तब मतलब तुम्हें पता है कि इस पूरे प्रूफ में कोई फ्लॉ नहीं है. एवरीथिंग इज करेक्ट. सर बट मेरे को एक डाउट. फ्लॉ कहां पर है? फ्लॉ कहां पर? जहां पे उसने बोला कि जो क्यू पॉइंट है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, फ्लॉ इस कंस्ट्रक्शन में. फ्लॉ इस कंस्ट्रक्शन में है दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम पी जो हमने यहाँ ड्रॉप किया है, अगर पी आर, देखो आर अगर बी के यहाँ नीचे आ रहा है, so for some reason, again ये केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा. I need a proof for it that the point Q will be actually between A and C. So what I'm trying to say कि अगर तुम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एक परपेंडिकुलर टू ए बी एक्सटेंडेड पे आएगा. मान लो अज्यूमिंग कि ए बी एक्सटेंडेड पे आ रहा है, जो आर आ रहा है, तो जो दूसरा जो फुट होगा वो ए सी के बीच में आएगा. दैट मीन्स क्यू जो है, पॉइंट क्यू lies between AC, and I need a proof for it. Okay, and without wasting any more time, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड वर्क ऑन इट. हम आंसर तक पहुंच चुके हैं. बहुत ही बढ़िया. तुमने बिल्कुल सही सोचा कि ये जो पॉइंट Q है वो यहाँ पे नहीं होगा, Q पॉइंट A और C के बीच में होगा. जैसे ही वो A और C के बीच में जाएगा, we will have some identities. मतलब किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे which is true for every triangle. मतलब AB equals to AC फिर तुम्हें नहीं मिलेगा. रीजन ये है कि अगर Q यहाँ पे आ गया तो तुम्हें पता है कि उस केस में AQ minus QC will not be AC. Actually AQ plus QC will be equal to AC. तो AB equal to AC कभी प्रूव नहीं होगा, है ना? बट मुझे ये प्रूफ चाहिए कि Y point Q should not be on extended AC if point R is on extended AB. Fine? तो ये तुम्हारा आज का टास्क है. एंड एवरी सैटरडे आई विल गिव यू अ सिमिलर टास्क, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा है जो चेंज कर देगा तुम्हारा परसेप्शन मैथ्स का. तो हाँ भाई, 0 to 5 you have a doubt. What doubt you have? Tell me. Does angle bisector in equilateral triangle bisects the opposite side? Equilateral triangle में बिल्कुल करता है. 031 says how BC equals to AC. तो बेटा तुम केवल इस डायग्राम में ABC को रोटेट कर दो. मतलब what I'm trying to say कि यहाँ पर B कर दो, यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे C कर दो, तो उससे इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं. और जैसे हमने AB इक्वल टू AC प्रूफ किया है वैसे हम BC इक्वल टू AC प्रूफ कर सकते हैं. इनफैक्ट C यहाँ पे कर दो, सॉरी C को यहाँ कर दो, A को यहाँ कर दो, B को यहाँ कर दो, तो सेम अगर तुम स्टेप्स रिपीट करोगे तो BC इक्वल टू AC आ जाएगा. तो मिलेगा ना सिमिलरली सेम रिजल्ट. सर इसके प्रूफ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज होगा? साइक्लिक तो ऑब्वियसली बन रहा है ना. ARP. सर सर हम लोग का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, हाँ, वो एंगल BAC के लिए एंड लाइक वो मीट कर रहा है इधर. तो हम लोग अगर प्रोट्रूड करेंगे AB और AC को एंड फिर परपेंडिकुलर बनेंगे तो वो लाइक लोसाई को लाइक डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि लोसाई सेज दैट AB और AC के लिए है तो प्रोट्रूडेड के लिए भी रहेगा. बहुत लो आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोसाई के प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंगल बाइसेक्टर दोनों साइड के लाइक सेम डिस्टेंस पे. सो अगर हम ये एंगल BAC के लिए, बट अगर हम AB और AC को प्रोट्रूड कर रहे हैं तभी भी ये लाइक सही है. हाँ सही है, क्यों नहीं सही है, बिल्कुल सही है. The property of loci says what?
If you choose any point on the angle bisector, it will remain equidistant from the two sides. So it doesn't matter you're choosing this point here or there, on extended AB, extended AC, it doesn't matter. This point will remain equidistant from the two sides always. PR equal to PQ will be always true. In short, है? Again, I'm telling you what's wrong. Actually, you have told me कि क्या गलत है. तुमने बता दिया PQ, the point Q should not lie here. और ये तुम्हें प्रूफ करना है. ठीक है? Okay. Cut it now. अब तो इसको अपने आप करना. Take a screenshot again. अगर नहीं लिया हुआ है तो और इसको ट्राई करना. ठीक है? So there you go. हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसको एक बार फिर जो असाइनमेंट भेजा था स्टीवार्ट्स वाला वो कर लेना और आइस 5 तक तुम्हारा काम है फिनिश करना. आइस 5 तक कर लो और बस इतनी ज्योमेट्री बहुत थी. इसके आगे ज्योमेट्री जिसको पढ़नी हो we will be starting our Olympiad batches very shortly. Maybe by next week or next to next week. So Olympiad batches में we are going to go ahead of this. Obviously इस ज्योमेट्री से हमारा काम चलने वाला है नहीं. तो कुछ लोगों को जिनको इंटरेस्ट हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैथ्स ओलंपियाड है इट इज नॉट इन सिंक विद जेईई प्रिपरेशन. सर ये पीआर. लेट्स स्टार्ट द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर तो हम मतलब थोड़ी बहुत ज्योमेट्री में प्रॉब्लम चलेंगी, थोड़ी बहुत नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम चलेंगी, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मिस्टेक्स इन अलजेब्रा. अलजेब्रा मैंने तो फर्स्ट डे बताया था कि देयर आई थिंक 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस इज अबाउट अलजेब्रा. आई मीन कैलकुलस छोड़ दो तो एवरीथिंग इज अलजेब्रा. कहने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बट यू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो अलजेब्रा. तो भाई अलजेब्रा में तुम्हें प्रो होना है. अलजेब्रा में तो हम कोई मिस्टेक बेयर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अब तक अलजेब्रा में तुमने क्या क्या पढ़ा है, लेट्स रिवाइज इट. और आई डोंट थिंक इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ. अलजेब्रा में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वी डू? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं तो बता रहा हूँ कि तुम मिस्टेक्स क्या करते हो जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया x square equals to x. X square equals to x is an equation and x equal to 0 or 1. Yes, x equal to 0 or 1. Very fine. But कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई x को कैंसिल कर दिया. बहुत सारे लोग करते हैं और x को कैंसिल करने से आंसर आ जाता है x equals to 1. So this is a mistake. Remember, this is obviously wrong. ये गलत है. What you must know is that power here is 2. That makes this polynomial a second degree polynomial. It is a quadratic. And there is a fundamental theorem in algebra. Fundamental theorem of algebra. बहुत ही बेसिक सी चीज है, तुमने सुनी भी होगी, हो सकता है इस नाम से ना सुनी हो. The fundamental theorem of algebra says that a n degree polynomial equation will always have n roots. You know, after introduction of algebra, centuries later actually they developed this fundamental theorem of algebra, which looks very, very obvious कि हाँ भाई ये तो होना चाहिए ना. What is the mistake here? We cannot cancel x. What we must do, what is a common mistake? Don't cancel. Do not cancel terms from both sides. Instead, take common. तो ये अलजेब्रा की बहुत ही बेसिक मिस्टेक है. कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसिलेशन से क्या होगा, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को x square equals to x को जो करेक्ट मेथड होगा हमारा, and as quoted by a fundamental theorem of algebra, what fundamental theorem of algebra says? If your polynomial is second degree, it is a quadratic. Look, degree is 2. I think everybody knows about polynomials, right? It is a degree 2 polynomial. It must have 2 roots. इसके 2 आंसर्स आने चाहिए. No matter what you do, 2 आंसर निकालो. और 2 आंसर्स इसके देखो अभी उसने बताया कि if you take x common, x into x minus 1 equal to 0. So x equals to 0 or 1. We have 2 solutions. You can
plug in these values to original equation and check कि not only one satisfies it, 0 also satisfies it. 0 भी satisfy करता है, 1 भी satisfy करता है. और ये भी करेक्ट है कि यहाँ से हमारे पास yes, very good, AR 025. So this fundamental theorem of algebra states that there will be n roots and exactly n roots. n से ज्यादा भी नहीं हो सकते. It cannot have more than n roots, है ना? So this is your first common mistake. This is what I've seen. बहुत लोग करते हैं ऐसा मत करना. और ऐसा करने की वजह से कई लोग weird से रिजल्ट्स निकाल लेते हैं 0 equals to 1, cancelling 0 both sides, है ना? वो चीजें नहीं करनी चाहिए. What is the second mistake? x की वैल्यू 0 लेंगे तो x raised to 0 equals 1 और it is not power x, it is x square. If you take x equal to 0, 0 square is 0, 0 equal to 0 आ जाएगा ना? अच्छा x देख रहा था. नहीं पावर में 2 है, कोई बात नहीं. Second mistake देखो तुम्हारी कुछ ऐसे हो सकती है. If you have x square by x equals to 1. Suppose we have this equation. Suppose we have x square upon x equals to 1. ये equation दी हुई है. And tell me what is the mistake in this solution. अगर है तो, if there is no mistake then we are fine. X square by x equals to 1 implies x square equals to x cross multiplying. And now repeating the same procedure, x square equal to x के बाद same procedure, x equals to 0 or 1. Sir, but 0 तो 1 नहीं आएगा. Sir, सिर्फ 1 होगा solution. सिर्फ 1 होगा. Sir, 0 नहीं होगा. तो what is the mistake क्या हुई यहाँ पर? सर डिवाइड कर लिया. अलग है. सर जो इक्वेशन पूछ रहा है वो है डिवीजन, लेकिन हम उसे कन्वर्ट करने के बाद उसके एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे वैल्यूज को. सर पॉलिनोमियल का डिग्री भी तो 1 बन जाएगा. इफ आई कैन तो यहाँ भी हो रहा था ना. मैंने x को कैंसिल कर दिया तो मेरा पॉलिनोमियल डिग्री 1 बन जाएगा. मैंने यहाँ पे x को कैंसिल कर दिया तो भी डिग्री 1 बन जाएगा. तो 1 को लेफ्ट साइड पे लेकर आओ. नहीं देखो हमारे केवल 2 स्टेप्स हैं, राइट? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी सॉल्व द इक्वेशन. तो मिस्टेक कहाँ पे? सॉल्विंग द इक्वेशन इज करेक्ट ऑब्वियसली. x स्क्वायर इक्वल टू x का तो 2 आंसर आने ही आने थे. इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है. सर x 0 होगा तो वो you can't multiply 0 on क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ना. Yes, because what is cross multiplication? What is cross multiplication means? Cross multiplication का मतलब तुमने अब तक शायद ऐसे विजुअलाइज किया कि जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं उठा के ले गए. Cross multiplication means actually कि you're multiplying x both sides. You're multiplying x both sides is cross multiplication. एक ही बात तो है. But when you multiply a common factor to each side, you have to make sure that this is not 0. भाई अगर हम x से both sides multiply करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है. We can always multiply by x both sides. You can always do that. But under the condition that x is not equal to 0. And why is that? Very simple. 1 is not equal to 2. We know that. But multiplying 0 both sides, 0 equals to 0 आ गया भाई. That means the initial assumption was wrong. 1 equals to 2. Obviously, we cannot multiply 0 both sides. We will get absurd results like this. है ना? तो 0 को multiply both sides करने से हमारी equation के जो roots हैं वो completely change हो सकते हैं या फिर कुछ absurd results आ सकते हैं. So cross multiplication is allowed या फिर multiplying by the same value is allowed, but make sure the value you are multiplying is not 0. So under the condition x is not equal to 0, you are solving this. You have to discard this root. 0 हम नहीं ले सकते because initial हमारा assumption था that x is not equal to 0, and now तो roots repeat. Roots. Sorry, hello. सर एक ही रूट आएगा. हाँ बिल्कुल एक ही रूट आएगा इसका एक ही रूट आएगा ना. There's only one root. All right. तो ये हो गया हमारा second point. Again, this is very important. Do not cancel. Instead take common. And cross multiplication में you cannot multiply by 0 both sides. So if you have a common thing you want to multiply both sides, make sure you have this condition that the common factor is not equal to 0. है ना? आगे बढ़ता है. और फिर इस केस में वहाँ पे x जब भी 1 को इस साइड पे लाया LHS में तभी भी तो हमें x into x minus 1 by x मिलेगा. तो उस केस में हम x को कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेने के बाद. बिल्कुल कॉमन तुम इनफैक्ट इनिशियल इक्वेशन में ही x कैंसिल कर दोगे
तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज तुमने अगर मेंशन कर दिया है दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन ऑलवेज कैंसिल x इन x, राइट भाई. x अपॉन x एंड 1, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between x upon x and 1? Sir, if x is 0, Yes. X upon x then is it will always be not x equal upon x is always 1. You're right. X upon x is always 1 except when x equal to when 0. it is a 0. Yes, because division by 0 is something we don't know. 0 से divide करने के बाद क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है भाई, है ना? I think ये भी कुछ लोगों का मिस कॉन्सेप्ट है. परसेप्शन चेंज करो. That division by 0 gives you infinity. No. Infinity is also something which is not defined, but infinity का perception different है और division by 0 जो है वो कुछ different है. Division by 0 is not going to give you infinity. दोनों ही undefined चीजें हैं, लेकिन एक अलग तरीके के undefined है और एक अलग तरीके का undefined. But anyways, x by x will be exactly equal to 1 only if x is not equal to 0. x 0 नहीं होना चाहिए because 0 by 0 is not allowed. So you can cancel x. Obviously x cancel करो, x equal to 1 directly लिखो, कोई issue नहीं है ना? Third one. Third question में suppose मैं तुम्हें एक question दे रहा हूँ, उसको तुम बताओ उसके solutions क्या होंगे. Suppose we have x to the power x square minus x equals to 1. ठीक है? डरने वाली बात नहीं है, जरा थोड़ी देर सोचो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समथिंग पावर समथिंग, और ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है. अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. x की वैल्यूज फाइंड करो. सर 1 होगा. 1 इट इज ओनली 1 रूट 2 और 0. कैसे आ रहा है आंसर बताओ मुझे. मैं आएगा सर, 1 ही आएगा. 0 सर बस 1 और 1. तो x square minus x 0 होना चाहिए सर. तो हमने भाई अच्छा वेट लिसन टू मी. हमने ये पढ़ा हुआ है दैट -1 भी हो सकता है. -1 भी हो सकता है. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में. सो a पावर 0 इक्वल्स टू 1 हमने पढ़ा हुआ है, राइट? a पावर 0 इज a पावर 0 equals to 1. ये हमने पढ़ा हुआ है. Can you prove it? Can you prove that any number power 0 is 1? इसका proof? Yes sir. कैसे? Tell me. Sir, suppose आप 2 ले लो. फिर 2 ले लो. हाँ सर. 2 into ये 2 power 1 है, ठीक है? फिर 2 power 2 करोगे तो 4 आएगा. 2 power 1 equals 2. 2 power 1 equals 2, 2 power 2 equals 4. ऐसे करके हम लोग जा सकते हैं नीचे. सर एक बार लिख दो. नीचे ऊपर जा रहे हो क्या? जा रहे हो नीचे. एक बार नीचे जाओ सर. एक बार नीचे कैसे जाऊं? 2 power 1 is 2, 2 square is 4. नीचे कैसे जाएंगे? हम तो ऊपर जा रहे हैं. हाँ सर, बस एक पैटर्न के हिसाब से दिखा सकते हैं. डिस्टरबेंस हो रही है सर, कोई किसी का. क्या पैटर्न दिख रहा है? एक 1 by 1 आराम से बोलो भाई, एक एक करके बोलो ना. 2 cube is 8. तो पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? सर अभी सर 4 वाला भी बना दो. बना दिया. हाँ तो सर अभी देखो लोग कितना नीचे जा रहे हैं सर. अरे कितना नीचे जाएंगे? हम कहाँ नीचे जा रहे हैं? हम तो ऊपर जा रहे हैं. हमारे वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं. अगर हम हमारा 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा सर. ऐसे आप हर एक नंबर के लिए बना सकते हो. अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो पहुंच जाऊंगा? हाँ सर ऐसे मतलब तुम्हारा प्रूफ रॉन्ग नहीं है, बट बस इंटरप्रेट करने का तरीका सही नहीं है. प्रूफ तुम्हारा रॉन्ग नहीं है. हाँ भाई, और कौन बोल रहा था बताओ? सर कोई है? सर अगर हम ये ग्राफिकली करें, ग्राफिकली करना चाहते हैं सर, अगर पावर को x ले एंड अबे तो कनेक्ट है एंड द आंसर इज y. अरे भाई कौन है ये? कोई बीच में बहुत एफर्ट मार रहा है. मिलियंस हो रही है. आवाज आ रही है अजीब सी. कहाँ पर? किसी के तो माइक्रोफोन से
सर किसी की माइक्रोफोन डिलेड वॉइस है उसका वॉइस हाँ, डिले हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, वॉइस डिले हो रहा है। तुम बाद में बात कर लेना, ठीक है? हाँ, तो अभी तुम कह रहे थे ग्राफ से हम प्रूफ कर लेंगे, तो ग्राफिकल प्रूफ्स एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं होते ना। ग्राफ प्लॉट करने का हमारा मेथड क्या है? वी विल पुट सम पॉइंट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम वहां पे प्लॉट करेंगे, और उसके बाद सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाता है। बट इफ वी डोंट नो दैट a पावर 0 इक्वल टू 1, 2 पावर 0 इक्वल टू 1, तो ग्राफ प्लॉट कैसे होगा? तो ग्राफिकली अब ये है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम कैलसी में रखते जाएं और हम उसको निकालते जाएं, और हम ये कहें ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, तो ठीक है, फैक्ट है कि एनीथिंग पावर 0 1 होता है, बट ग्राफिकल प्रूफ इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो जो पहले वो बता रहा था वो ऑलमोस्ट करेक्ट था, बट इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं था। सर a raised to power 0 is equal to a raised to power 1 minus 1. That's it. That's it. So what a is power that? 0 equals This to we can write a1 into a to the power minus 1. Yes, yes, very good. अब देखो इस प्रूफ में तुम्हारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थोड़े रिवाइज होंगे. If you remember, powers are getting subtracted, so in the common base we'll have division, right? A power 1 upon a power 1 is a power 1 minus 1, and clearly this is 1. But at the same time you must know, अब देखो मैंने अगर ये मान के solve किया, because I was talking about common mistakes, तो लोग ये पढ़ते हैं that anything power 0 is 1. Anything power 0 is 1. इस पावर को हमने कर दिया 0, x square minus x equal to 0, and again x square minus x equal to 0 will give you two solutions. That's why some of you are saying 0 or 1. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. But the common mistake here is that a should not be equal to 0. Anything power 0 is 1. It is true, except 0 power 0. What is 0 power 0? Again, 0 power 0 जो है वो तो डिफाइन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर तुम इस प्रूफ पे भी जाओ, सपोज a 0 हो जाता है, सपोज अभी के लिए हम a मान रहे हैं, बट बाद में हम 0 रखेंगे. The moment you got 0 power 1 upon 0 power 1, 0 upon 0 is something which is not defined. तो तुम्हारा प्रूफ भी बता रहा है कि a should not be equal to 0. Correct? So anything power 0 is 1, but except 0 power 0. Exact 0 power exact 0 is not equal to 1. And that's why देखो 0 और 1 में से एक सोल्यूशन जो हमारा 1 है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. देखो ना, इस 1 को अगर हम यहाँ पुट करके देखें तो 1 पावर 0 इज 1, बिल्कुल सही है. बट जो 0 वाला सोल्यूशन है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. रीजन, अगर हम x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 पावर 0 आएगा, एंड 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1. तो जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है वो ये है, ये हमारा परसेप्शन कि एनीथिंग पावर 0 इज 1, बट इसके साथ यहाँ पर अपेंड करो, there is one more thing, and that is the base itself should not be equal to 0. Remember this. हाँ, इसके अलावा देखो प्रतीक्षा ने बोला कि एक रूट और आएगी यहाँ पे -1, बिकॉज यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं दैट पावर 0 हो गई तो 1 आएगा, बट अगर बेस 1 हो गया तो पावर कुछ भी होते रहे तब भी आंसर 1 आएगा. और अगर बेस -1 हो गया, अगर बेस -1 हो गया और पावर कोई इवन नंबर हो गई, -1 का होल स्क्वायर, -1 पावर 4, तो भी आंसर 1 आ सकता है. एंड दैट्स व्हाई शी वाज सेइंग -1, बिकॉज -1 रखते हैं, देखो -1 और यहाँ पे पावर क्या आएगी, अगेन 1 + 1 2, एंड -1 का होल स्क्वायर 1 होता है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है -1 में, वो ये है कि जब तुम कैलकुलस पढ़ना शुरू करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बेसिस में हम नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन. I'm not saying x equal to -1 is wrong. Trust me, -1 is बिल्कुल correct. -1 में कोई mistake नहीं है. -1 whole square is 1. But there is a convention we have to follow, that in case of exponential functions, we have some powers, variable powers on variable basis. We do not accept negative values in the basis. तो अगर इसको as a function treat करोगे, जो कि later on हम पढ़ेंगे 12th standard में, तो -1 accept नहीं होगा. But for the time being, -1 is a solution. But मेरा जो -1 सोल्यूशन है ना, तो फिर ये लाइक बेसिक रूल को डिफाई करेगा ना कि अगर रेज टू लाइक x पावर है तो उतने ही होने चाहिए उसके रूट्स. फिर से बोलो, क्या बोला? हम लोग का एक बेसिक रूल था ना कि अगर a रेज टू n है तो n लाइक रूट्स होने चाहिए.
a raised to n तो क्या होना चाहिए? n रूट्स होने चाहिए इक्वेशन के. नहीं तो इसकी पावर क्या है? पावर फिक्स. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट? What is a polynomial? Power should be constants. Power यहाँ पे variable है. This is not a polynomial. यहाँ पे fundamental theorem of algebra apply नहीं हो सकती. You're getting me? This power is a variable. तो यहाँ पर तो obviously वो theorem लगेगी ही नहीं ना? नहीं लग सकती होती. ठीक है भाई, तो ये कुछ common mistakes है जो तुम करते हो, इसको ध्यान रखना. और आगे अभी और मैं चीजें बताऊंगा. जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, तो क्या मिस्टेक्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा. इसके अलावा फोर्थ, सपोज वी हैव दिस root x equals to 1. Suppose I have this, in fact root x equals to, अगर हम कर लेते हैं minus x, suppose root x equals to minus x is an equation you are supposed to solve it. root x equals to minus x का solution क्या होगा? मैं जो points बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आएंगे तुम्हारे. ऑब्वियसली हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कोई 10th की कोई थियरी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो मतलब हमारे किए कराए हुए पानी फेरना, जो बोलते हैं ना कि हमने मेहनत की पूरी, हम यहाँ तक पहुंचे, हमने नेक्स्ट स्टेप में कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर दी जिससे हमारा आंसर रॉन्ग आ गया. क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो शायद हमको 0 मार्क्स मिलते. क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिया, आंसर रॉन्ग आ गया, तो हमें नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे. सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग. तो ध्यान रखना है मेरे को यहाँ पे ये. अब बताओ मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर मुझे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड समझ में आ रहा है, दैट वी शुड स्क्वायर both sides. Right? Let's square both sides. I'll get x equals to minus x whole square, and you know minus x whole square is x square, right? Solving this, we'll get again x square minus x equal to 0. Somehow the whole universe is converging to this equation only, but it is purposely equation आ रही है, मैं बार-बार ला रहा हूँ because solve ना करना पड़े. We have two solutions, 0 and 1. We have two solutions, 0 and 1. X equal to 0, x equal to 1. Very good. तो देखो सभी लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंथू आ गया बिकॉज पुरानी अलजेब्रा शुरू हो गई, बट देयर इज अ मिस्टेक. बट 1 नहीं है सर. 0 करेक्ट नहीं है सर. 0 करेक्ट नहीं है. 1 कैसे होगा सर? 1 करेक्ट 1 नहीं होगा सर. 0 करेक्ट है, 1 है और -1 से कैसे इक्वेट होगा? हां वो एक्चुअली व्हाट इज योर कॉमन मिस्टेक इन दिस सॉल्यूशन कि भाई यहाँ पर तुमने पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है वो रेडिकल से प्लस माइनस. हाँ दोनों ही गलत है. दोनों ही गलत है. दोनों 0 में क्या मिस्टेक है? What is root over 0? 0. What is minus 0? 0. 0 is correct. 0 wrong नहीं है. 0 is absolutely correct. But अब यहाँ पर कोई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना. Because ये कोई mathematical fact नहीं है. I cannot derive this. I cannot prove it. This is just a convention. और ये ऐसा convention है जो कि हो सकता है कि केवल हम 11th और 12th में फॉलो करें. हो सकता है कि हम ग्रेजुएशन में ऑन रिकॉर्ड हम सेइंग, हो सकता है ग्रेजुएशन में हम इसको फॉलो ना करें, बट 11th एंड 12th में इसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड दैट कन्वेंशन सेज दैट रूट ओवर x इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव, अ नॉन नेगेटिव वैल्यू. रूट ओवर एनीथिंग, इफ ऑब्वियसली इफ दिस इज डिफाइंड, इफ x इज पॉजिटिव, तो जो उसका स्क्वायर रूट है, दिस इज अ कन्वेंशन. मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 4, रूट ओवर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारे दिमाग में दो आंसर्स आएंगे, प्लस और -2, राइट? प्लस और -2. बट फॉर द टाइम बीइंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में यू विल यूज ओनली +2, एंड दिस इज अ कन्वेंशन वी हैव टू फॉलो. आई एम अगेन कोटिंग, आई एम अगेन स्टेटिंग प्लस माइनस दोनों सही हैं, बिकॉज -2 का स्क्वायर तो 4 होता है. But this is just a convention. What are conventions? Conventions are like कि first quadrant में x positive होता है. This is a convention. ये कोई mathematical fact नहीं है कि positive इधर होता है और negative इधर होता है, है ना? ये केवल एक convention जो मैं follow. हाँ. So it has no proof. You just have to follow it blindly. किसी ने बोला है, हमको मानना पड़ेगा. Standard set of rules. Yes. These are standard set of rules. So this convention says that root over anything is always positive. तो
अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन आएंगे, और मुझे पता है कंफ्यूजन अगर आए तो उसके लिए रेमेडी डिस्कशन, डिस्कस करो अपने कंफ्यूजन को, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें, एक तो है x इक्वल्स टू √4, फाइन, x इक्वल्स टू √4, एंड दूसरी इक्वेशन है x² इक्वल्स टू 4. बिफोर कमिंग टू दैट, लेट्स discuss these two equations. Now tell me, is there a difference between these two, or these two are same? Tell me. सर पहले वाले का आंसर +2 ही आएगा, दूसरे वाले का +-2 दोनों आ सकते हैं. तो ये चीज कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगी आगे चलकर. इसको ध्यान रखना कि रूट ओवर एनीथिंग, कौन है भाई, म्यूट कर लो, तुम बोलते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी भाई. यूके, हाँ, तो रिकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, इसलिए प्रॉब्लम. हाँ, so x equals to +2 is the only answer. X equals to +2 is the only answer for this equation. Reason is that convention, that root over x is always considered to be positive. ठीक है? But coming back to this equation, x² equals to 4, if I solve this, it will be x equals to plus minus 2 √4. तो ये प्लस माइनस क्यों आया? बिकॉज ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं. ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ गए. हियर वी हैव टू सॉल्यूशंस +-2, और ये तुम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, बिकॉज 2² is 4 -2² is 4, apparently correct. But here -2 is not a correct answer because of this convention, because root over 4 cannot be -2. Otherwise maybe in higher मतलब आगे जाओगे 12th के बाद तो √4 को +-2 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर मल्टी वैल्यूड फंक्शन. एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं. बट अभी का कन्वेंशन क्या कहता है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग वन इनपुट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट. Go for your fundamental theorem of algebra. This is second degree equation. We must have two roots. This is a 1 degree polynomial. We must have only one root. सर बट अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं फिर तो हम लोग भी दो. Exactly. तो वही तो common mistake है. Do not, I mean, try not squaring both sides. Try not to square both sides, or try not to raise any power. But why such a convention? सर क्यों सर? सर क्योंकि हम आगे तो यूज करेंगे ना +-. Because it may give some extra solutions. तो सर ये जेई में भी एप्लीकेबल है ये माइनस? Yes, everywhere. जेई 11-12 में हर जगह एप्लीकेबल. तो मेरी हाँ. पर ऐसा कन्वेंशन क्यों? क्योंकि हम आगे तो यूज करेंगे ना फिर +-2. डिपेंड करता है कि आगे तुम कहाँ, अब तुम मैथमेटिकल कोर्सेज ऑप्ट करते हो और ये कुछ कोर्सेज में जब तुम आगे बढ़ोगे तो हो सकता है. बट अभी के लिए 11-12 में बिकॉज हमारे पास वन वेरिएबल फंक्शन है और फंक्शन की कंडीशंस ऐसी हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन की वजह से रूट ओवर एक्स को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता. सर तो जब भी हम लोग रूट करें तभी भी हम लोग को मॉड डाल के करना है. यस. अब मॉड क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं इसलिए मैं मेंशन नहीं किया. यानी ये समझ लो कि अगर लिखा हुआ है रूट ओवर x², जिन लोगों को मॉड पता हो, जिन लोगों को ना पता हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में बताऊंगा. रूट ओवर x² इक्वल्स टू मॉड ऑफ x लिखेंगे. ऑब्वियसली x पॉजिटिव होना चाहिए. तो जिन लोगों को मॉड पता हो, मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मॉड ऑफ x गिव्स यू द मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ऑफ x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना. मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू +2. तो ये हमारा एक कन्वेंशन है, उसको फॉलो करो. और उस कन्वेंशन से पहले बात ध्यान रखो कि ट्राई नॉट टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो ना, मेरे पास एक और रास्ता है, वो ये कि √x लिखने की वजह से ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. आंसर कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट. और √x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे √x का होल स्क्वायर. तो क्या मिस्टेक है? √x इक्वल्स टू -√x होल स्क्वायर. क्लियर सी बात है कि अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम कॉमन लेंगे, √x plus √x whole square equals to 0, and from here if you take √x common, √x plus 1 equal to 0. एक सोल्यूशन तो हमको x equal to 0 मिलेगा. This implies x equal to 0.
बट दिस इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन बिकॉज इसको अगर तुम सॉल्व करोगे यहां से आएगा रूट एक्स इक्वल्स टू -1 और रूट एक्स इक्वल्स टू -1 में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे. रीजन रूट एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. रूट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू -1. तो ये हो ही नहीं सकता है ना. तो जहां तक हो पाए अवॉइड स्क्वायरिंग बिकॉज एनीवेज. अब ये तो चलो ये इक्वेशन थोड़ी ट्रिकी थी. अगर मैं तुम्हें एक सिंपल इक्वेशन दिखाऊं जैसे मान लो लिखा हुआ है सपोज लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 1. x इक्वल टू 1 में x की वैल्यू क्या है 1 है. बट व्हाट इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल गेट x स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड नाउ यू हैव x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. तो क्या हुआ देखो एक एक्स्ट्रा रूट आ गई. इट्स अ सिंपल एग्जांपल वेयर यू कैन सी स्क्वायरिंग से प्रॉब्लम क्या है. स्क्वायरिंग से जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं. दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड स्क्वायरिंग और अवॉइड क्यूबिंग और अवॉइड टेकिंग एनी पावर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. अवॉइड इट. आई मीन ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट मना ही कर दिया कि मत करो. अगर कोई और तरीका नहीं बचा है तो करो बट ये बात ध्यान रखना कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं है ना. अभी मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा हम लोग ये कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. हम लोग स्क्वायर ये सब कर लें और जो हम लोग पास दो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें से नेगेटिव वाला निकाल दे. वैसे चेक कर लो. हाँ चेक कर लो. करेक्ट भाई. तुमने अल्टीमेटली स्क्वायरिंग कर ली 2 आंसर्स आ गए 0 आ गया 1 आ गया तो अल्टीमेटली उसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो. बट सपोज यू आर गेटिंग मेनी सॉल्यूशंस 10-12 सॉल्यूशन आ गए अब चेक करने बैठे हैं तो काम बहुत बढ़ जाएगा ना है ना. तो इसलिए बेटर होगा कि हम पहले अवॉइड करने की कोशिश करें. अवॉइड नहीं हो पा रहा है इट्स इनएविटेबल. आना ही आना है तो फिर तो करो स्क्वायरिंग करो और चेक करो कर सकते. ठीक है भाई. तो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स इन अलजेब्रा. इसको ध्यान रखना और वैसे भी ध्यान रखी जाएंगी बिकॉज में जब असाइनमेंट्स या हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे देन विल गो थ्रू इट एंड all similar type of questions and examples will be there in quadratic and sequence series and all those chapters. तो ये anyways हम we are going to encounter this है ना आने वाला है. तो चिंता मत करो. बस मैंने अभी ब्रीफ दे दिया स्टार्टिंग के लिए कि तुम पहले से ही तैयार रहो. should be prepared. After that अलजेब्रा में कुछ और चीजें हैं. अलजेब्रा में तुमने जो 10th पढ़ा हुआ है I'm going to rub this. अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो या ले चुके हो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा बस एक पॉइंट और मुझे डिस्कस करना है. इनफैक्ट जो बुकलेट में क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल हैं. नॉट एवरीबॉडी हैज टू सॉल्व अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स क्योंकि वो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं. तो मैं चाहता हूं कि वॉलंटरीली अगर किसी को सॉल्व करना हो तो बुकलेट आईस 5 के आगे सॉल्व करना. अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. अलजेब्रा के लिए मैं एक सेपरेट असाइनमेंट दूंगा क्योंकि ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. ओके. सो रिवीजन में बस एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं और वो है फैक्टराइजेशन. ये बड़ा क्रूशियल है भैया ना. कई बार अच्छे क्वेश्चंस में अगर मैं फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो हम फंस जाएंगे अलजेब्रा. फैक्टराइजेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए और फैक्टराइजेशन में टाइम लगना चाहिए कि हम डिराइव कर रहे हैं बैठ कर है ना. तो फैक्टराइजेशन के जो फॉर्मूले में याद होने चाहिए. मैं जो ऑब्वियस वाले हैं वो लिखूंगा नहीं. a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन या a² + 2a + b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन a² - b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन सबको पता है. लेट्स स्टार्ट विद क्यूब्स. a³ + b³ a³ + b³ ये कई बार तुम्हें मिलेगा. तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में कई बार मिलेगा. a³ + b³ का तो ब्रैकेट a + b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ab ओके. अरे क्या बात है. और बताओ कि a³ - b³ का क्या होगा फैक्टराइजेशन. a - b²+b² कैन यू डिराइव. सपोज मुझे a³ + b³ आता है बट मुझे a³ - b³ नहीं आता है. कैन यू डिराइव a³ - b³ इन सिंगल स्टेप फ्रॉम a³ + b³. साइन इन्वर्ट कर. वैल्यू b की जगह -b सब्स्टिट्यूट b कर की दे. जगह पर -b सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए. क्या बात. b को -b रखेंगे तो -b³ हो जाएगा और इस पूरे फॉर्मूले में b को -b रख दो. a + b हो जाएगा a - b. a square minus a to -b will become +ab and -b whole square will remain same b square. ऐसे ही थोड़ा शो ऑफ है. पता तुम्हें याद ही है क्या करना है. ओके. क्यूब्स के फॉर्म में अब अगर 3 वेरिएबल्स आ जाएं. सपोज वी हैव a³ + b³ + c³ -3abc. 0. What? हाँ ये कॉन्सेप्ट है. It is not 0 भाई. क्यों 0 क्यों?
It is not zero. Yes. A plus B plus. There are two factors. B plus A plus C, B plus C. A plus B plus C का A square plus B square B plus square C B square minus AB minus BC minus C BC minus. और भाई जो लोग जीरो बोल रहे थे उनके लिए एक corollary है यहाँ पे. It says if A plus B plus C if is A equal to plus 0. B plus C is equal to 0, then this implies Then A AQ cube plus plus B cube plus C cube is equal to 3AB. is equal to 3ABC. ठीक है ना. तो ये जीरो तब होता है, मतलब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB से तुम जीरो बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें शायद ये याद था इससे तुम जीरो बोल रहे थे. What is the converse of this statement? यानी कि अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई A क्यूब कॉलरी नंबर 1 लिख देते हैं इसको. What if A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC equals to 0? This implies what? A plus B plus C A plus B plus C equal to ABC. A plus B plus अरे हाँ obviously तुम 3ABC शिफ्ट करोगे नहीं भाई, ये तो हमको दिया ही हुआ है ना कि A cube plus B cube plus C cube equal to 3ABC. इसका कंक्लूजन क्या है? From here what can we conclude? That A plus B plus C equal to 0 or वो दूसरा ब्रैकेट इक्वल the other factor can be 0. It is not necessary that A plus B plus C is 0, right? यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C equal to 0. And tell me what does this imply? भाई A plus B plus C is equal to 0 तो obvious जो तीन नंबर्स का सम 0 है तो ठीक है A cube plus B cube plus C cube अगर the whole square is equal to 0. this no A plus B plus C के होल स्क्वायर से तुम कुछ कर नहीं पाओगे ना, फिर A B B C C 3 times आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा. I'm asking you if this expression is 0, what can you say about ABC? Obviously इनमें ABC से are कोई real. तो एक नेगेटिव है. Not necessary, no. क्यों एक नेगेटिव होना चाहिए प्रतीक्षा? Why? क्योंकि सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो यही होगा. हाँ तो ये तीन पॉजिटिव हो गए और मान लो ये तीनों नेगेटिव हो गए तो अपने आप कैंसिल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल They are all equal. तीनों इक्वल नहीं होंगे. तीनों इक्वल होंगे. अच्छा हो गए. हाँ सॉरी. ये तीनों इक्वल होंगे और कोई सोल्यूशन यहाँ से आ ही नहीं सकता. एंड वी कैन इजीली प्रूव इट. पता कैसे? देखो यू मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स है ना, मल्टीप्लाई 2 both sides. What do you get? 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca equal to 0. Now take 1a square. यहाँ से एक a square लेते हैं. A plus b the whole square कर लो. Yes. A minus b minus whole square बनाएंगे. हाँ. Yes. This is a square. यहाँ से हमने एक b square लिया and take minus 2ab from here. ठीक है ना? ये हम क्लब करने वाले हैं इन तीन टर्म्स को. Then similarly take one more b square. यहाँ पे हमने एक b square ले लिया, यहाँ पे हमने एक c square ले लिया and take this minus 2bc. And obviously बचा क्या हमारे पास? एक c square बचा हुआ है और एक a square बचा हुआ है और बचा हुआ है minus 2ca. Then you have three perfect squares, a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to 0. And do you know that if sum of perfect squares is 0 where numbers are real, I'm mentioning time by time ये real हैं और उसका reason है कि अभी मैंने एक बार शायद तुम्हें बताया था नंबर थ्योरी में और तुम्हें कुछ लोगों को पता भी है कि कुछ imaginary numbers होते हैं. उन numbers के लिए ये points correct नहीं होंगे. But as long as numbers are real, you know square of a real number is always positive. Positive plus positive plus positive अगर 0 है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे 0 होने चाहिए. 0 plus 0 plus 0 because ये नेगेटिव इनमें से कोई हो नहीं सकता. So this implies A equals to B equals to C. So I want you to remember this fact. इसको ध्यान रखना because ये वाला जो expression है ये तुम्हें कई बार मिल सकता है. That A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. अगर ये 0 है
सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, a प्लस b प्लस c 0 हो सकता है, बट उसके साथ साथ ये भी हो सकता है, क्या a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c भी हो सकता है। ठीक है, उसको ध्यान रखना। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। जैसे उस पे मैं तुम्हें एक सिंपल सी प्रॉब्लम दिखाता हूं। जैसे मान लो पूछा गया फैक्टराइज करना है तुम्हें, यू हैव टू फैक्टराइज दिस। तुम्हारी बुकलेट की प्रॉब्लम है ये, अगर कुछ लोगों ने सॉल्व की हो। यू हैव टू फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करो। ऑफ कोर्स सभी को फैक्टराइजेशन का मतलब पता होगा। यहाँ पे देखो प्लस साइन है, these expressions are getting added, so we have to express this as a product of some expressions in ABC, product of some expressions, factorization. How will you factorize this? Tell me. सर पहले चेक कर सकते हैं a plus b plus c 0 और a plus b plus c 0। हाँ 0। So equal to 3abc हो जाएगा। c cube plus 3abc। देख कितना इजी हो गया। मतलब अगर हमको ये चीज स्ट्राइक नहीं करती, ये हमने नहीं पढ़ा होता, रिवाइज नहीं किया होता, तो हम कहीं बहुत लंबे चक्कर में फंस जाते। बिकॉज अगर हम होल क्यूब ओपन करेंगे तो काम बहुत लेंथी हो जाएगा। बट अगर तुम इस चीज को रियलाइज कर चुके हो, या अगर तुमने अभी तक नहीं स्ट्राइक किया, देखो अगर मैं a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए x मान लूं, b माइनस सी को सपोज मैंने y एज्यूम कर लिया, और c माइनस a को z एज्यूम कर लिया, सो इट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, है ना। where clearly x plus y plus z, अगर तुम इन तीनों को ऐड करो, a minus b 0, yes, plus b minus c plus c minus a, cancelled, a by minus a, c by minus c, b by minus b, it is 0. And if a plus b plus c is 0, x cube plus y cube plus z cube, या a cube plus b cube plus c cube is 3abc। तो ये होना चाहिए आंसर 3x y z। And there you go, ये तुम्हारा आ गया आंसर भी, a minus b, b minus c and c minus a, done। Factorization in one step, a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube is 3 times a minus b into b minus c into c minus a। सही है ना। तो ये हमारे काम का एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस है बुकलेट में। तुम्हारा फर्स्ट जहां से अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पेज पे ही कुछ मैंने फैक्टराइजेशन मेंशन किए हैं, उसको देखना। मैं सबको नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज सारे बहुत काम के नहीं है, बट अगर तुम याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। बस अब एक और कर लेते हैं, एंड दिस वन इज समथिंग लाइक दिस, x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर। इनफैक्ट 4y पावर 4 कर दो उसको। Treat this as a question, ये एक क्वेश्चन तरह ट्रीट करो, ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है जिसको तुम फैक्टराइज करते हो। बट इंटरेस्टिंग होगा डिस्कस करना कि ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कैसे करें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन होता, वी कुड हैव अप्लाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट स्ट्रेंजली वी हैव सम इवन पावर्स, सो दैट मेक्स इट पॉजिटिव। ऑब्वियसली एक्स वाई रियल या चलो इमेजिनरी भी हो तो क्या पड़ता है, फैक्टराइज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हैं, और अब इनके सम को फैक्टराइज करना है। बताओ क्या करेंगे। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x पावर 4 को हम लिखते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, और 4y पावर 4 इज 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट? ये कह रही हो ना? नहीं, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट? ये भी आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा। देखो यहाँ से x पावर 4 को लिखा हमने x स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, करेक्ट? एंड देन वी कैन इजीली फैक्टराइज। वेरी नाइस। तो जो उसने बताया अभी, सभी लोग ध्यान दो कि कुछ क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन करने के लिए तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक का यूज करना पड़ सकता है। व्हाट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर? देखो ना, दिस इज a स्क्वायर माइनस, यस, दिस इज b स्क्वायर,
So if I add, देखो ना, अगर हमारे पास a square plus b square है, and if I add and subtract 2ab, so this part, a square plus b square plus 2ab will become a plus b whole square. So this is completing the square, adding and subtracting 2ab. So consider x square as a, 2y square as b. What should I add and subtract? 2 into a, which is x square, into 2y square. And subtract the same term. जिससे कोई फर्क ना पड़े. In fact, इसको multiply कर लो तो this is actually 4x square y square. Now look at first three terms. हमने एक perfect square यहाँ पर बनाया है, so this will become a square minus b square हो जाएगा तो a plus b a minus b. Correct. Very good. X square plus 2y square whole square is your perfect square for first three terms. And what about the last term? Minus 4x square y square. This itself is a perfect square. This is 2x square whole square. है ना? और अब देखो तुम इसको factorize कर सकते हो. Because x square plus 2y square plus 2xy, a plus b into a minus b, x square plus 2y square minus 2x square. So sometimes this completing the square trick can also work in factorization. That's it. अब book लेके थोड़ा revise करना शुरू करो. Tuesday को we are going to start trigonometry. And trigonometry obviously हमारे JEE syllabus का topic है. So we cannot afford to ignore या फिर bunk करने का या फिर कुछ भी हो जाए lectures. सर ट्रिग्नोमेट्री के बुकलेट्स मिलेंगे PDF? बिल्कुल PDF तुम्हें कल या मंडे को तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप पे ही, है ना? वो बुकलेट को फॉलो करनी. तो सर अलजेब्रा खत्म ना? अरे नहीं भाई, अलजेब्रा तो ट्रिग्नोमेट्री अपना करेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री जितनी सिलेबस में है जेईई के सिलेबस में उतनी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम लोग 11th में. तुम बताओ आगे बढ़ना है? हाँ सर. यस सर. भाई हमें देखो एक होता है ना कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो सपोज तुम ओलंपिक्स में आना चाहते हो और तुम जो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है